बंद कर ले। So, hello, am I audible to all of you? Hello. Hello. I'm audible to all of you. Acha, not audible. Okay. I'm audible to all of you. Akriti, Vipalchi, Deepika, Gayatri. I'm audible to all of you. Yes, sir. Okay, Gayatri. So let us give a brief and congratulations to all of you. One of your colleague, you can say, has cleared net this time. So you cannot say lucky one, right? Because this was an effort. This was not a luck. Okay, so believe in yourself, believe in your hard work, because whatever the amount of hard work you will do, and you will get the result in that way. Okay, so what you can do with me, I'm going to compile all the data with analysis and last year CSIR question paper, and then preparing my lectures based on that. Mostly I'm giving the lectures in two form, PPT form and also notes form, right? So already I have prepared a full notes on the OneNote, right? And also continuously I'm improving that. Continuously I'm preparing with the diagrams, with the analysis, with the data, because so many questions are coming in the CSIR examination. Okay, so you might be aware of that question like matching questions are there, research and region are there, right? Multiple choice questions are there. Okay, and research based questions are there. So mostly you have a very less time, means 2 minutes per questions mostly, and in B section this is less than 2 minutes. So there are 35 questions you have to attempt out of 50 questions. And one of my students, Arindam, very genius guy, he just confused last moment and then he left at least 10 question out of 35. That's why he was not so much lucky in qualifying. And the girl was very brave and might she be joined today, okay, with you people, and she might direct you how to
kick start with preparation, because kick start means you have to manage a lot of time doing a lot of things, like many of you are in the science labs and are doing some projects. Okay, so that's what I can suggest you before starting my lectures, that you have to listen very carefully, have a paper and pen, because mostly whatever after the discussion, whatever you are understanding, you must note down the important keywords and things. Okay, important new definitions, graphical analysis, right? Because that will be rarely you are going to find out, and this will be very helpful in the last round revision also, because mostly what is happening, you are preparing very well, but just 1 week before you are not having enough notes or kind of preparatory kits, so that you can compile each units in very rapid way. And also I am not suggesting you to go through and read the books in 7 to 8 hours every day. You cannot manage that. So for you people, I am doing that. So what you have to do, you have to revise the PPT many times and go through the videos and analyze and listen properly what I am saying. Sometime because in online lectures is very similar to the physical lecture. There is no difference. Physical lectures, a lot of complexity is there and a lot of problematic is there. How there is problematic, you can understand well. They are very costly. You have to manage physically, you have to present physically, you have to take out the time, right? And then a lot of crowd are there in the classes, a lot of noise is there. Sometimes you are not able to concentrate yourself. So this is the right place, I think. And I have been teaching online since 3 to 4 years. When I started my CSIR coaching first time online, there were 7 to 10 students were there, and till date that ratio is maintained. And mostly the students are very genius who are joining me, because if you will see their NTA score for last time, they are 82, they are wearing 80 to 96, and almost very similar pattern you can observe in the main examination, except few students were not seriously taking the mock test, because mock test is a lifeline, your backbone, because you read a lot of things, right? But when I'm pinpointing a question by a mock test, then your real knowledge is tested. That how much means 4 things are tested when the mock test is there. Once your accurate memory, and then analysis, power of analysis, and real analysis of words. Because sometime I am going to change the words. So sometime you are very fond of that this keyword will be in the question, then I will mark this answer, and I am changing a very single words sometime in the end of the questions or in beginning of the question, and the answer is totally changed. So that's you should leave your old habits of just listening like movie. This is not a movie. You have to go through the analysis. You must analyze each and everything. You should your eyes as an X-ray, right? So then only you can grasp many things, and you have to make note each and every point. Try to make a notes, because a sequence I am developing during the lectures. Because if you match the syllabus, they are just mentioning what is they are mentioning. They are mentioning that the 3D structure of the nucleic acid, 3D conformation of the conformational structure of nucleic acid. This is a 3 common words given in the syllabus, right? But when I am analyzing that word, that has a broad meaning. For example, a lot of question rises: what are the nucleic acid structures? How many type of nucleic acids are there? How their structures is going to form, primary, secondary, tertiary, how they becomes functional, right? What are the charges, how they show the tautomerism, what are their behavior in the solutions. Okay, so a lot of questions are there that have to be answered. So I'm developing a sequence. Try to make the notes if possible, or I will upload all the notes on the Google class, okay, where you can download. You can take the print also if you find it necessary, because mostly I am advising that save the paper. Okay, so if you are watching this lecture on the laptop, that's very good.
because at a broader scale you have more flexibility. And also my app, Merit Life Sciences app, is also working on the laptop, so you can have a better visibility of the question while attempting the mock test. Okay, so let us starting with the 3D conformational structure. And last time we have just discussed, it's just a recap what I have discussed in the last time. So we have discussed last time about the nucleic acid structure, what is the polynucleotide, how the nucleotide is going to form by the involvement of phosphate, sugar and base, right? And nucleotide structure contains phosphate, sugar and base. Bases are of two types, purines, adenine and guanine, and pyrimidine are of three types, cytosine, thymine and uracil, right? And what is the role of phosphoric acid? This is a phosphate provider, molecular formula is H3PO4, containing 3 monovalent hydroxyl group. You have to focus on it because they are the main reason of being a negative charge over the nucleic acid. Okay, that's why nucleic acid and a divalent oxygen atom are linked to pentavalent phosphorus atom. And what about the sugar? Sugar is 5 carbon keto sugar or pentoses, only possesses either deoxyribose or ribose sugar. So L form is not there, D form is there, deoxyribose, D ribose sugar. Okay, so there is a conformationally both the sugars are different. For example, if you see the ribose sugar, this is C2 endo. I will discuss it later on detail, and sometime I have also discussed earlier. And this deoxyribose sugar, C3 endo. So both sugar are present in furanose form and beta configuration. Which form is there? Furanose form. Why I am saying furanose? Because there are two type of sugar, furanose and pyranose. Do you know, Raj Lakshmi? There are two form of sugars, right? Pentose, right, and hexose. Pentose sugar is called as furanose, right? And also note down there is a beta configuration, not alpha configuration. And pentose sugar form ester with phosphoric acid, and this is ester 2 times. That's why this is called as the phosphodiester bond. Clear? Phosphodiester bond. Okay, beta, this is clear. So nitrogenous base, if you see two type of nitrogenous base, purine and pyrimidine. This base is linked to sugar moiety by some carbon used in sugar-sugar bond. Purines are adenine, guanine, pyrimidines derivative are uracil, thymine and cytosine. Okay, pyrimidine derivative are uracil, thymine and cytosine. Clear? Right? So if you are talking about the nucleoside, this is without what? What is absent in the nucleoside? Tell me. What is absent in the nucleoside which is present in the nucleotide? Phosphate group. Phosphate group. Okay. So this is having a sugar, a linkage called as the beta glycosidic bond between D-ribose and cytosine nitrogen base. Okay, so this is the two type of sugar, ribose and deoxyribose. And I have told you the backbone is very interesting, right? Because sugar phosphate backbone is there. Nucleotides mostly contain the BSP, sugar, phosphate. Also a phosphate group join the 3 carbon of one sugar and the 5 carbon of next line. So that's why 5 to 3 configuration. Adding in the bases are attached to the carbon number 1. This order is important. It determines the genetic information of molecules. Okay, so offering is there. If you people want to congratulate, please congratulate offering, and also ask if you have any query regarding preparation during the preparation CSR, because this is the most important and very prestigious kind of examination, right? So let me offering is not able to just wait.
Afrin, am I audible to you? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Congratulations. Heartiest congratulations to you on your big success in the CSIR. And all these my students want to have a little discussion with you, and you can also guide them for the preparation, how they should take the notes, what they should follow, what kind of books they should read, what is the most important point during the preparation, what mistake they should not do. So all that if you want, you can mention in your talk. So please, Afrin, thank you so much. Yes, sir. Hello. Yes, Afrin. Yes. सभी को good evening. All they are mostly English understanding people. Rajlakshmi, I think Vipanchi Hindi and Deepika Hindi also. So. Yeah, sir, it would be good if she speaks in English. A mix of Hindi and English, right? That will be better. Okay. Good evening, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Rajlakshmi, start with your questions. First, congratulate Afrin, and then start with your questions. Thank you so much. Yes, I call. So, congratulations, Afrin. Okay, thank you so much. So, the questions that I have is, how did you schedule your time to study, compensating your college and all, as well as your preparation? So, what was your time schedule, and how did you categorize each and everything based on the importance of the chapters? This is 3 to 4 questions in one question. तो Afrin आप हिंदी बोल सकते हो. I will translate it in English. Don't worry, है ना? Okay. आप हिंदी में बोलो, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा. Okay. मैंने जो first of all, I am married and I have a little baby, 1-year-old baby. So it's very difficult for me to manage our time and everything. It's very difficult for me because as a bahu and as a mother, it's very difficult for me. लेकिन फिर भी I qualified CSIR NET because of only that you have seen that CSIR syllabus is containing 13 units, right? So I only focused at 6 to 7 chapter only. मतलब 6 और 7 ही सब, yes, 6 or 7 subject को ही मैंने सिर्फ completely she focused completely on 6 to 7 units, and because I was constantly mentioning that you should be master of at least 6 to 7 topics unit wise, rather than running behind all the units, because that is impossible. Almost. Yes. Because you have seen that 13 unit is very vast syllabus. So very huge. Yes, और student जो है इस चीज में students are tracked very easily because of 13 units. That's very difficult to complete in 6 months. 6 months और सबसे पहली बात ये है first thing is for CSIR you have to completely devotee on only in 6 months, not more that, क्योंकि 6 month is sufficient for qualified that CSIR, क्योंकि ये मेरा first attempt था
फर्स्ट अटेम्प्ट था, और आफ्टर मैरिज के बाद बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन चीजों को मैंने मैनेज किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्वालिफाइड किया CSIR नेट। और ये भी बता दो कि कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया कि तुम जल्दी से ज्वाइन कर लो, सिलेबस पीछे हो रहा है। एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली, है ना, ड्रॉपिंग, पासिंग डे बाय मंथ, है ना, एंड शी वाज नॉट एबल टू ज्वाइन अर्लियर। और फिर मतलब मैं स्टार्टिंग में मैं सिर्फ ऐसे नॉर्मल स्कूल में पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल में, और कोचिंग, ताकि मुझे थोड़ा सा इनकम वगैरह हो बस। लेकिन जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे मेरा बेसिक बहुत अच्छा था, तो मैं सोचती थी कि मैं वाई आई एम हियर इन दिस स्कूल फॉर ओनली 12,000 10,000। तो वो चीज मुझे लगा कि टाइम वेस्टिंग है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसके लिए तो हुई नहीं इतने इस चीज के लिए। तो मैं let me translate. And she was continuously working as a school teacher at a 12,000 payment, and then she was a very bright teacher, है ना? So suddenly the idea came to her mind that why should not she try for the research scientist as a JRF, right? So then she took that idea, left the job, and constantly struggling with her financial situation. Then she joins me, right, after 2 months of the start of the class. तो उसने मैंने बहुत मोटिवेट किया पहले उसको, बहुत लगातार मैसेज करता था मैं कि ज्वाइन करो बेटे, ज्वाइन करो। प्लीज। तो हाँ, ये सर उसके बाद फिर मुझे जो है सर, मैंने मेरिट लाइफ साइंस को भी सर्च किया, तो इनका मेरिट लाइफ साइंस का मैंने फीडबैक देखा तो काफी अच्छा था। तो एक बार मैंने सर को ऐसे फोन किया, ऐसे ही, फिर मैंने जो है फोन कट कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूंगी और नहीं करूंगी, जो मैं पढ़ा रही स्कूल में वही। लेकिन आफ्टर दैट सर कॉल्ड मी कि आप जो है ज्वाइन करिए, ये चीज है बेनिफिट, और मतलब चीजें बहुत मोटिवेट किया। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं ज्वाइन करूंगी। उसके बाद आफ्टर दैट जब मैंने सर से पढ़ा, कुछ दिनों तक पढ़ा, 15 दिन 20 दिन, एक मतलब तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि पढ़ाई का, कि मैं आगे नेट CSIR नेट JRF क्वालिफाइड करने का। मैंने बहुत सही डिसीजन, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अब सही डायरेक्शन में हूँ, क्योंकि मुझे चीजें बहुत बेसिक से और चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रहा था और मजा आ रहा था। क्योंकि सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो बाकी कोचिंग से थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्योंकि सर जो है वो मतलब ज्यादा रटवाने पे फोकस नहीं करते हैं कि चीजें जो है क्रैमिंग करो, ये कि हाँ ये चीज रट लो टाइप का। वो मतलब सर का एक चीज मैं सर आपकी तारीफ करूंगी। बिल्कुल। यस सर, जो सच है वो बोल रहे हो, तारीफ की बात नहीं है, बिकॉज everyone should be awarded. If the student is doing well, they should be awarded. If teacher is doing well, they should be, है ना? I am not like that कि मतलब मैं अपने सर की, मेरे गुरुजी हैं, मैं इनका बहुत ज्यादा शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि सर ने मतलब इनका जो पढ़ाने का सर का है वो बहुत अच्छा है कि सर जो है पूरा थ्योरी को जो है वो समराइज करके मतलब जैसे सपोज करो कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सर हमें पढ़ाने जा रहे थे, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को सर पढ़ाने से पहले क्या करते थे कि इसमें क्या पढ़ना है, पहले बेसिक पे जाते थे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है और CSIR में क्या पूछता है, वो उस पे फोकस करते थे कि हाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में शुरुआत से पहले सेल, फिर डीएनए से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद हम म्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर बात खत्म, हमारा मॉलिक्यूलर यहाँ तक कंप्लीट। अब हमको ये समझ आ गया कि अच्छा मॉलिक्यूलर सब्जेक्ट में ये चीज होता है और ये चीज हमको पढ़ना है, और फिर हम ये मतलब बेसिक मेजर हेडिंग हम लोग को सर मतलब समझाते थे। उसके बाद फिर डीएनए पे आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं, फिर ट्रांसलेशन पे आते हैं, फिर मतलब पहले रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो जो सीरीज जो चलता था ना, मतलब वो एज अ कहानी चलता था, मतलब वो सारे जो लेक्चर वगैरह होते थे वो एज अ स्टोरी चलता था। स्टोरी से क्या होता था, हम चीजों को एक दूसरे से लिंक कर पाते थे कि अच्छा मतलब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो ये मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, ये पाथवे है,
फिर इस चीज को जो है लिंक करना मॉलिक्यूलर को लिंक करना टेक्निक से, तो ये इस तरह का जो चीजें था वो बहुत ज्यादा मुझे हेल्प किया था। तो सर के लिए ये चीज मैं थैंक यू बोलूंगी सर से कि मतलब सर इसके लिए, क्योंकि मैं चीजों को बहुत अच्छे से जल्दी लिंक कर पाती थी, और जब हमको चीजें लिंक करना आ गया और एज अ स्टोरीज को समझना आ गया तो चीजें दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये चीज है। अब उसमें हमने पूरा सब कुछ पढ़ लिया है, अब उसमें क्या क्या चीज हमें रखना होगा, मेन चीज, तो उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे। और सर की बात ये थी कि सर हम लोग को बोलते थे कि बार बार रिवाइज करो, क्योंकि और ये चीज कैसे पता चलता था, थ्रू सर का मॉक टेस्ट। और सर का ये चीज था कि सर ने एक चैप्टर पढ़ा दिया या एक टॉपिक पढ़ा दिया, और उस टॉपिक में सर जरूर से जरूर टेस्ट लेते थे। भले आप वो टॉपिक आप खुद ना पढ़े, लेकिन सर अपना मतलब टेस्ट बोल देते थे कि आप टेस्ट लीजिए। फिर मैं क्या करती थी कि सर ने मुझे आज वो पढ़ा दिया। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी, थैंक यू सो मच। बोलो। एवरीवन अंडरस्टैंड ना? हाँ, एवरीवन अंडरस्टैंड। I will summarize in the last, don't worry. Oh, okay. If anyone, because mostly Hindi is understanding, na Raj Lakshmi and Gayatri, I will explain later on. Okay, okay. Okay, sir. तो सर थैंक यू सर। तो ये चीज था कि मतलब एज अ कहानी वो चीज लिंक करना बहुत इजीली था। फर्स्ट पॉइंट ये चीज था। दूसरा पॉइंट ये था कि सर ने हम लोग को कहा कि 6-7 यूनिट जो है वो उसको अच्छे से मतलब उसको 110% उसको अच्छे से कवर कर लो, ताकि उनमें से एक कुछ भी क्वेश्चन आए तो उसमें तुमसे वो क्वेश्चन छूटे ना। तो हम जो है 6-7 चैप्टर जो है वो मैं अच्छे से मैंने कर लिया। अब वो 6-7 चैप्टर मैंने अच्छे से कर लिया है अब, और उसके सारे क्वेश्चन भी मैं लगा रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। और सर ने जो टॉपिक पढ़ा दिया है उस टॉपिक से सर नेक्स्ट डे जो टेस्ट लेते थे उस टेस्ट से ये पता चलता था, क्योंकि सर का जो टेस्ट में जो क्वेश्चन होते थे उस क्वेश्चन से हमको ये समझ आता था कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हेल्प करता था कि हमको मतलब क्वेश्चन किस तरह से CSIR में पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि हमको उस थ्योरी में पढ़ना क्या है। राइट है ना सर? हाँ, फिर जैसे हमने क्वेश्चन देख लिया, इस क्वेश्चन देखने से ये हो रहता था, टेस्ट देने से ये रहता था कि आइडिया मिल जाता था कि उसमें हमें पढ़ना क्या है, कि उस चैप्टर में हम, क्योंकि इतना सारा उस चैप्टर ना पढ़कर सिर्फ 7 या 8 यूनिट पर हम फोकस रहे, ओनली फोकस्ड ऑन 7th and 8th यूनिट विथ क्लियरिटी, और अगेन एंड अगेन यू हैव टू रिवाइज। That is the key. That is the key. Because if you are studying no revision, it's going to be blank, है ना? And you must attempt mock test, each and every mock test and take it seriously, है ना? Prepare like CSIR examination, like you have to enter into the CSIR and give full time, because I am allotting 1.5 hour and I have just seen that everyone is finishing the test in 20 minutes. So obviously you are getting only 20% or 30%, right? We have to analyze, because questions are not easy one. We are just allotting a lot of questions based on the mixed standard, and I'm going to provide from basic to advanced. So what she is suggesting that focus on 3 things. First, attend regular classes. Second, take the notes during the regular classes, right? And third, revise whatever the PPT and video is given to you every time, whenever you are getting the time, just keep on revising, okay? Don't make a gap, and devote maximum time for the CSIR. Then certainly you are going to qualify this time CSIR. And she is suggesting that not for, running for the all 13 units, right? Rather than whatever you study, you must try to have a mastery over that subject. For example, she was suggesting that when she was learning the developmental biology, then she not left any lecture. She attended all the lecture and she took a notes, and that notes help in last moment revision also, and making clarity of the concept, because you don't know whenever the CSIR is going to change the pattern. So she was suggesting that sir was telling from beginning to last moment, not relying on the formula as the most of the coaching are
coaching people are doing. They are giving the formula and they are suggesting you to cram the formula, right? And just means they are following a kind of prepared formula that may work, may not work, right? So mostly she is suggesting, she was the first time attempting for the CSIR, and she was fully confident after joining the Merit Life Sciences that she might be crack if she will follow the suggestion of the sir. Okay, am I right, Avril? Yes, So yes, sir, yes. she devoted herself and she motivated herself, and whenever there was a mock test and when there was low marks Yes, sir. in the mock test, she always try to make a discussion, try to understand the concept where she make the mistake, and that was the crucial and very important part of for the qualifying, and you can say the main reason for qualifying the CSR, because until and unless you catch your concept, you catch your mistakes, you cannot improve yourself, and you must learn from scratch, from A to Z. Then only you will be successfully, you will be able to apply during the examination, because examination is not a kind of very simple examination. She was telling that the examination was very tough, but she never frightened out, because she was taking the triple strategy. First live classes every day and making the notes. Yes. Second strategy, and then revising again and again to make at least NTA score on our app, Merit Life Sciences app. That is also giving you the NTA score in the form of accuracy score from 90 to 100, right? And this is the target for all the students of Merit Life Sciences, that you must attempt 70 to 90%. And as per expectation, she got the same marks whatever she attempted except few mistakes. That's why she is again trying to appear in this examination so that she can improve more score and can have a better chance of having the rank, improving the rank also. So anything, if you want to ask a question, so anyone are invited, she will happy to take that questions. Okay, तो आप इनके क्वेश्चन का जवाब देना, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है अभी सौम्या मोस्ट वेलकम, you have just joined, I think you got the concept or not, I don't know. Sir, one thing. Please. One thing I add. Please, Yes, yes, sure. Everyone focus, what I am trying to say, that you have to focus completely, devotee on plant physio, ecology, evolution, developmental biology, molecular biology, genetics, biochemistry ka not completely complete biochemistry, at least protein chapter, न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर और मेटाबॉलिज्म वाले सारे चैप्टर, वो ये 3 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेल सिग्नलिंग कम्युनिकेशन another very important chapter. So these are very very important chapter which you don't forget this chapter. And another thing focus on whatever our sir teach us, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और जो भी अनदर चैप्टर जो सर टीच अस, फोकस एंड बिलीव ऑन देयर पीपीटी. विश्वास करिए कि सर के जो पीपीटी है वो बहुत, सर के पीपीटी इज सफिशिएंट फॉर क्वालिफाइंग CSIR. दे आर सोर्सेस एंड कंटेंट. सॉरी, वो मेरी बेटी, कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम. यस, एंड सर के कंटेंट ऑफ एनी टॉपिक इज सफिशिएंट फॉर क्वालिफाइंग CSIR. और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो भी कंटेंट इज सर का बहुत अच्छा है, वेरी गुड. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? I think Rajlakshmi is one of my best students. She will ask some more questions. She has explained most of the things, sir. Okay. So sir, yes, sir. Sir, another thing I add that question, focus on trying to solve all the question and advanced question, because what I have seen in exam, that question are very advanced.
So question वही topic are same. Topic but question are very advanced. Yes. yes, topic is repeated, but their question is advanced and change, and their language is, and they change their language. Topic are same, but language, they change their language. So people students are confused. Because they are cramming. That's why they are confused. Yes, sir. And another thing, during examination, what I have done, that I slowly I read every question. Not every question, because I have a choice, because I only focus on 7th or 8th chapter. So that's why I am very clear that I only choose 25 and 23 question. 25 question I only choose, and then I did only 23 question. तो क्योंकि मैंने yes, I am not focus on 13 unit. I only focus on 7th to 8th unit. So in my mind, very easy to select me that 25 question. It's very easy for because, me to because select. It's not compulsory na to do the all 50 questions. Yes, है ना? yes. आपको 50 क्वेश्चन में से 35 करना है उधर से लॉन्ग क्वेश्चन में 25 करना है. Yes. Or it's very easy to me to select 25 question, because I have not read all the 13 units. I have read only 7 to 8 units. तो मेरे लिए बहुत ही आसान था कि उस चीज को जल्दी से क्वेश्चन ढूंढना. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट ड्यूरिंग एग्जाम टू recognize that question which you have already, which you learn. Recognize that question ढूंढना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है ड्यूरिंग एग्जाम. वेरी time is less. Time ही नहीं है. Because time is less. Because time is very less. So 1 minute for one question. Yes sir. 1 minute for one question. And very difficult to recognize all the question and read all the question. So if you are focused only 7 to 8 units, so you have to easily recognize only 25 question. तो जल्दी आप करेक्ट कर लोगे. अच्छा 25 क्वेश्चन मुझे क्यों? क्योंकि if you focus on all 30 units, then you गड़बड़ होगा कि आप, क्योंकि देन आप क्या होगा कि सारे क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन को पढ़ोगे, सबको लगेगा. सबको, क्योंकि if you read all the question, then you get confused, because you read all 13, so you get confused कि मैंने ये भी पढ़ा था, which one to select, which one to leave, which one is select. So ये भी मैंने पढ़ा था, मैंने ये भी पढ़ा था, तो उससे क्लियरिटी नहीं आएगा. और CSIR में जो मैंने देखा, CSIR जो है वो क्लियरिटी मांगता है. अगर जो आप चीजों में कंसेप्ट में क्लियर हो, तब आप ऑप्शन तक पहुंच पाओगे, वरना कम समय में बहुत गड़बड़ शड़बड़ हो जाता है. माइनस ही मार्किंग होगी. सिंपल. That's why out of lakh student only 11,000 to 10,000 students are selected. So this time there was 3 lakh student total seated in the CSIR examination, and then you can see the result. Very few means they are at least trying for 2 to 3 attempts, and 4 attempts, sometimes 8 attempts. Last time one student was there with us. That was the last attempt, and he was very frightened. He said, if I will not be selected as JRF, then my career will be destroyed. He was very hopeless. Then I said, clear out your concept, beta. Don't worry for your results. Whenever the concept is clear, then certainly you are going to crack, because cracking is a concept, not concept. This is a question designed by the CSR scientists. Not in they are taking 1 to 2 days to design these questions. They are very logical, highly analytical, and then if your concept is very clear, then only you can reach out as suggested by the offering. Okay. So any more questions? Alkaya, Gayatri, Soumya, Deepika, Vipanchi, Akriti. I hope you are getting motivated, not reverse direction. Okay. Who is jealous of the offering success? Tell me. Raj Lakshmi? Gayatri? Thank you so much, Afrin.
Actually, we are kind of getting some confidence that we can also do something. Yeah, of course. She's saying, what she's saying, if you are not able to qualify, then we are losing the confidence in married life sciences. And now I'm always thinking about other coachings because the students are getting very high quality lectures and all that. So you have proved that married life sciences is best, Afreen is best, students are best, and all the lectures are best, notes are best. So not to waste time, right? Rather than just make the notes during the lecture, right, Afreen? And try to revise maximum time, maximum utilization of the time and revision of the notes. Don't worry, don't waste your time in reading all the high-five books because these are a very lengthy book. At least 1 unit required 3 to 4 books. You will not be able to manage. This is by for sure. And if you will calculate time, today is the 8th February, means if you are calculating that if the examination is scheduled to held in the 15th June, then you can calculate it's 15 Feb to 15 June. It almost only 4 months. 4 means 120 days. And now 120 days, and if you'll see there are 12 units remains consisting of every units means 10 topic means 120 topics in 120 days with mock test. It's almost impossible. So we are not going to rush over that, but we will mostly going to take a speed after the at least unit 2 because the students are very slow in joining. So right, I have started the class, but students were very less, so there was no benefit of joining speeding up the lecture. So and actually I'm scheduling 2 days for one topic, that's it, right? So you have to take a speed on revision only, not wasting on time on different books. Okay, and mostly you are scientist people, so what is expected? Think of yourself. You are expected to be more analytical. Suppose I am asking about why I am using pharmamide with DNA. Suppose I am a CSR scientist, then I want to test your knowledge. Then I will surely going to ask if I am mixing pharmamide, double helix DNA, and then I am taking the UV absorption spectra. Then what consequences may happen? It means you must be very, very analytical. Whenever I am giving you the lecture, think over that. And if I am not wrong, Afreen was one of the genius students during the lecture. She was not going to listen only. She was discussing all over together the graphics, what are the reasoning, why this is the incident happens, what is the meaning. Everything was discussion with the going through the discussion. And that's a very good habit with the Rajalakshmi I have seen. And Alkaya Gayatri is very silent learner. Vivanchi is a very sharp teacher, so not discussing over that. Akriti is not enough motivated to be scientist. Just she has joined the Merit Life Sciences to give a very good review. Yes, sir. So, excuse me, sir. Yes, please. Yes, sir. So one thing, and whatever you study, always revision. Keep revision. Revision and revision again and again. Keep revision. What I have did before exam, I revised at morning time. Every day I revise. Whatever I studied, I revised at morning time. And during whole day, I only focus on question. Try to solve question. Revision is very, very important. Yes, very good. So I think now the plan is ready, and I hope you will follow. Make a planner of your life, right? Starting beginning from the 5 of morning, and better 5 of morning, because up to 8 you will have a 4 times speed, right? 4 times speed. I got to know that Deepika and Soumya is going to lab 8 p.m. Is it correct? And even Raj Lakshmi leaving the house at 8 p.m. So you can manage in that way, right? A little bit earlier, 4:30 onwards, and then 2 hours is very sufficient to revise whatever I taught in the class. Yes, sir. So 2 hours very, very sufficient. Very enough, yeah. And what about your aptitude test? What you will say about the aptitude part A? So
sir, aptitude में I have only attempt only 2 question. So aptitude में. So आप लोग ज्यादा क्वेश्चन करो, ये बोलता हूँ ना इनको. हाँ ये सर. ज्यादा मार्क्स आएंगे उससे. हाँ ये सर, लेकिन सर because I have very less time and because हाँ ये सर for me, but you people are you are so lucky that तो अभी देखो वो क्या कहना चाह रही है. लिसन मी, सी इज टेलिंग दैट a lot of pressure was over her, है ना. A baby was there and she was married, a lot of pressure from the family, and then despite of that she was successful in making that plan, है ना. And then she was not only planning, she was executing the right way, okay, because the morning time is very crucial and you can, whatever you are going to revise, you will leave it in your permanent part of your memory, right. So this is not going to forget easily if you are taking your time in the morning session. Even you are traveling 1 hour 2 hour, the Google Class app, whatever I am providing, it will be very helpful. You can just open it and you can go through the video, because next morning I am uploading the videos, okay. And suppose class is going on this time, its recording will be uploaded in the night or in the morning time. So it will be available at 8 a.m. or morning, right, onwards. So easily in the whole day you can utilize your time when you are taking the lunch or you are just planning for an experiment and it's going on, so it is taking reaction time is 1 to 2 hours. That time you can best utilize for your practice session, because revision, don't focus on a question first, focus on your preparation first. You should be very clear out your concept. So for example, if nucleic acid is there and I am asking, suppose at physiological pH, mostly purine or pyrimidine are in the form of enol form or keto form, then you should not look over the Google, है. So such kind of knowledge should be there. तो जब आप maximum revision करोगे, then everything will be in your tip of tongues, okay. So you will be speak out, you will have a very sharp memory morning. और इसके बाद ओमेगा हमने तुमको बताया था, तुमने खाया था ओमेगा आफरीन? You forget that. एक मेमोरी बूस्टर है ना, मेडिसिन भी बताई थी. तो आई एम ऑल्सो ए डॉक्टर, सुपर डॉक्टर, डॉक्टर विद डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, योगा प्रैक्टिशनर, है ना, एंड एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजिस्ट. Okay, but I think you want to ask some questions, Deepika, Soumya. Am I right? Sir. Please पूछो. Please पूछो. Don't worry. Sir, I want to know, is mock test sufficient for the practice or should we go through the catalyst also? Pardon? Hello? Only mock test, how it will be helpful, because whatever I am teaching, offering suggested ना कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ तो उसी पे mock test बनते हैं, so that every topic आप level 1 से लेके level 3 वो दोनों एग्जीक्यूशन बिना, जैसे मान लो आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो एंड केवल मॉक टेस्ट पे जाते हो, तो आपका हर मॉक टेस्ट में बहुत डिसअपॉइंटिंग आएगा आंसर. क्योंकि आपको पहले से तो पता था नहीं, ठीक ना, आपको वो कंटेंट भी नहीं मिला, आप पढ़ भी नहीं पाए. उतना जंप लेना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज आप एक मंथ में जो पढ़ोगे वो मैंने 1 वीक में पढ़ा देना है, राइट. दिस इज ट्रू और नॉट, ऑफरिंग? So sir, we are going to cover all the 13 units or नहीं, मैं तो अपना ड्यूटी करूंगा. आई एम गोइंग टू गिव यू द ब्रॉडर लेंथ ऑफ मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, राइट. अभी जैसे 1-2 यूनिट चल रहा है, तो अभी मैं 2 दिन में डेडिकेट करता हूँ, बिकॉज 5 डेज वीक क्लास चलती है ना, तो 3 डेज डेडिकेटेड फॉर बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल 1 to 5 यूनिट्स, और बीच में वीकेंड में हमारी चलती है फ्रॉम यूनिट 8 से हम स्टार्ट करते हैं, फिर 13 यूनिट तक, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल हो जाते हैं 8 से 13 यूनिट, ठीक है ना. तो हमारा ये प्लानिंग कि 1 to 5 उधर हो जाए, राइट. और ऑलमोस्ट क्योंकि 7-8 इकोलॉजी है तो एक सिमिलर ही है, तो उसको मान लो कि 7 से लेके 13 तक, 8 यूनिट से 13 तक वो हम कवर करते हैं. डेवलपमेंटल बायोलॉजी जैसे 9th यूनिट का है, 13 पूरा टेक्निकल यूनिट है, टेक्निकल पोर्शन है ना. 12th का भी उसी पार्ट में है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल पार्ट है ना. तो छोड़ना मैंने कुछ भी नहीं है.
हमें स्पीड बहुत तेज लेनी है, ये कह रहा हूँ। तो आफरीन क्या कह रही थी कि आप साथ में जो सर टेस्ट लेते हैं दोनों प्रैक्टिस करो, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि किसी टॉपिक में कितने % आपने लर्न किया। तो दैट विल नॉट बी इनकम्प्लीट स्टोरी। अगर रियली में इस बार सीरियसली क्रैक करना है, अगर 1 ईयर का टाइम है तो देन यू गो ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन। हमने जो फार्मूला डेवलप किया है सक्सेस का, राइट, जिसकी बेस पे हमारे बच्चों ने निकाला है पास्ट ईयर में, वो फार्मूला ये है कि आपको जितना चीज दे रहा हूं वो बिल्कुल प्लान वे में है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड माई टाइम ऑल्सो, राइट, एंड वेरी अर्ली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। दैट्स इट। एनी मोर क्वेश्चंस? No, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, Soumya. So I think, Soumya, can you brief me about your work space from 8 to I think 7? Yes, sir. Your work time is starting from 8 morning, na? Yes, sir. Sir, it's 9 o'clock, but I have to leave your house. Yes, sir. So that's why I planned, na, because earlier most of the students joined Merit Life Sciences who were working in the laboratory or some kind of they were working in other spaces, okay, like school teacher. Okay, so what I designed for saving your time, that in the Google class I can show you here also. In the Google class I am uploading everything. Okay, just I want to show, just give me a second. This was open. Okay, this was not open here, this was open somewhere else. Just give me 1 second. Just 1 minute. दूसरे बात। हेलो, हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो? हाँ हेलो जी, टेक्निक आई फोकस ऑन दैट। अब ये देखो सौम्या, पार्डन अपने सौम्या, इधर देखो, पूरा हमने जैसे जेनेटिक्स की बात कर रहे हो तो एक एक चीज का नोट दिया, जैसे मैपिंग का एक्सक्लूसिव नोट्स है, ठीक है ना। इसके यूट्यूब के वीडियो भी दे रहे हैं, इसका RFLP मैपिंग, COC इंटरफेरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरा 1 आवर 20 मिनट का वीडियोस है। नोट्स जेनेटिक्स का पूरा लोड किया हुआ है, मैपिंग जीन कैसे करते हैं, जेनेटिक्स हमने जो सेल्फ मैंने जो खुद बनाया नोट्स वो आपको देखो मिल रहे हैं, आप डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हो अगर आपको यूजफुल लगता है। मतलब सर आई वांट टू लर्न एवरीथिंग। देखो आफरीन ने बताया ना कि आप बीच में से नहीं लर्न करना कभी भी, राइट, आप स्क्रैच से लर्न करो। देखो अगर कोई डिजीज है तो आपको ऐसा नहीं है कि एडवांस ट्रीटमेंट तुरंत ही आते ही करने लगेंगे। यू कैन नॉट रश। इफ यू आर गोइंग टू रश देन इट्स गोइंग टू बी एक्सीडेंट काइंड ऑफ थिंग। देखो जेनेटिक कैलकुलेशन का पूरा PDF दिया है, बट आपको एक दिन में नहीं समझ में आएगा। ये हमने पूरा बेसिक दिया है कि पूरा टर्मिनोलॉजी समझो, क्योंकि एज सुन एज यू आर गेटिंग द टर्मिनोलॉजी यू आर अप्लाइंग। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन 1 कंटिन्यू हो गया, देख रहे हो आप, फिर उसके एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू हो गए, ठीक है ना, देख रहे हो पूरा हमने एक एक चीज दिया हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कर्ली बीइंग फिनोटाइप डोमिनेंट और रिसेसिव, कैसे डिसीजन लोगे। मतलब वी आर ऑल डूइंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स फॉर योर सक्सेस। ये मत सोचना कि तुम अकेले करोगे ज्वाइन करने के बाद भी। आई एम फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग, ओके। हार्डी विल्मर के जितने एडवांस फार्मूले आते हैं सब तरह का फार्मूला दे करके आपको एक एक एग्जाम्पल भी दिया हमने कि क्या लगेगा, कब लगेगा, राइट, एंड हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज द ग्राफ, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। हमने इन सबको प्रैक्टिस कराया आप इनको और सबको, ठीक है। ये मैं अब ये बच्चे क्या करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं ये सब नोट्स। ये कहाँ मिलेगा, पढ़ा के चला गया, फिर आप कैसे रिवाइज करोगे, भूल गया अगले दिन, है ना। तो फिर ये तो सर्काडियन रिदम यूनिट 6 में हमने पूरा पढ़ाया है, सर्काडियन रिदम कंट्रोल, ये पूरा नोट्स है। ई बुक्स भी अपलोड कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नोट्स अपलोड कर रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं, देखो, है ना, देख रहे हो, ये पूरा बना हुआ है एकदम। खाली इसको रिवाइज कहते रही थी वो कि आपको कोई बुक्स नहीं पढ़ना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, जस्ट गो थ्रू द सीक्वेंस वाइज क्या लिखा है। राइट सर, हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी सर ने बहुत अच्छे से कंटेंट दे गिव अस, एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी का कंटेंट सर गिव अस वेरी गुड कंटेंट है ना कि कहाँ पे क्या पूछ सकता है। हाँ, इम्यूनोलॉजी सारा वो मैं दूंगा, वो आपको बॉदर नहीं। आप बॉदर इतना करो कि जितना मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। जब फॉलो नहीं करोगे तभी रिस्क में आओगे, तब मेरी गारंटी नहीं होगी, है ना भाई। जब अपने से ही फॉलो करोगे तो फिर कहाँ से फायदा होगा। वो तो मुझे पता है ना, मैं 2-3 साल से बच्चों को क्लियर करा रहा हूँ। मेरा अभी एक बच्चा था शुभम, वो 10th रैंकर था DBT में,
एक बच्ची थी, वो बहुत ही मतलब मानती नहीं थी कुछ, तो उसका देखो डीबीटी आज तक उसका नहीं निकला, सीएसआईआर का इवन रैंक भी नहीं आया। हाँ सर बोलो बेटा। सर डीबीटी का आई हैव गिवन डीबीटी एग्जाम, आई गॉट 170 marks. No sir, yes sir, and previous cutoff is 150, but and I first attempt I got very हाँ good बहुत marks. बहुत कांग्रेचुलेशन इसके लिए भी। तुम तो आज बता रही हो, मुझे पता ही नहीं था। 170 ही मार्क्स आया था पिछली बार शुभम का, जो कि 10th कैटेगरी 1 में 10th टॉपर था, फर्स्ट अटेम्प्ट में आया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बेटा अपने से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आप टीचर फोकस करके पूरा बनाता है नोट्स, है ना? तो हाँ, यस, थैंक यू सो मच। You always cleared हमको एबीसी मॉडल आता है, एबीसी मॉडल की जितनी चीजें हैं सब हमने पढ़ा है। कंफ्यूजन नहीं रहता था सर, जो पढ़ा देते सर। आफ्टर सर लेक्चर I note down each and every important content, important topic. Then I go to their question and give mock test. So these are strategy which I स्टडी बेटा आप लोग नोट कर लो, डिबेट ना करो। राजलक्ष्मी को भी मैंने सजेस्ट किया, गायत्री को भी, कि फुल सब्सक्रिप्शन में जाओ। अदरवाइज आपको आधा अधूरे में फिर आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। वो नेक्स्ट आपका जाएगा 6 मंथ, फिर नेक्स्ट 6 मंथ जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। 1 अटेम्प्ट में मारो, जेआरएफ क्लियर, आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। ये मत सोचो कि हमारा खराब हो रहा है पैसा। Sir, one thing I want to add, very important sir. Sir, one thing I want to add that don't go on shortcut. Don't try to go on शॉर्टकट जाओगे नुकसान होगा, सीधी बात है। Yes sir. अरे सोचो, जितने भी पॉपुलर इंस्टीट्यूट हैं इंडिया की, जिसका नाम ले रही थी आफरीन, ठीक है, XYZ जो भी हैं, उनके बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के गए हैं, उनका क्लियर हुआ। वहां क्लियर क्यों नहीं हुआ? वो 200 की भीड़ में पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 9 to लेके 4 o'clock तक क्लासेस चल रही हैं। 3 महीने में कोर्स उनका खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उनको कोर्स खत्म करना है। दे आर नॉट डिस्कसिंग इवन ए सिंगल मॉक टेस्ट क्वेश्चन एनीवेयर। वो दे देते हैं, आपका जो मार्क्स है आपकी फ्यूचर। आपने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट लगाने के बाद मतलब 7 से 8 लाख रुपए खर्च करोगे, रहोगे, हॉस्टल का पे करोगे, खाने का पे करोगे, सारा कुछ करने के बाद इवन दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। सो मेरे को बच्चे कम ज्वाइन कर रहे हैं, वो इशू नहीं है। मेरे अंदर जीनियस बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे लिए सबसे अच्छा इशू ही है। तो आप लोग मोटिवेट होके जितना कहूं उतना फॉलो करो। सर्टेनली आई एम गोइंग टू गिव यू बैक ऑल योर मनी, डोंट बॉदर फॉर दैट। ठीक है ना? डॉक्टर आप कहता है कि हार्ट का इलाज कर रहे हैं, तो 100% लिख के नहीं देता ना कि हो ही जाएगा, लेकिन वो करता है, हो भी जाता है, तो जान बच जाती है। तो एक्सपर्ट का मतलब क्या है? टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 20 years, ओके, एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एंड आई पब्लिश्ड एटलीस्ट 4 books, 2 text book and 2 reference books, okay. So one more book's coming very soon in the market. One over the animal cell culture concept and application, and other over the enzyme catalysis. Okay. तो आप लोगों को क्या लगता है कि शॉर्टकट कैसे करोगे? जब मेरा पढ़ाया हुआ आपने पढ़ा ही नहीं, तो हाउ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द मॉक टेस्ट, राइट आफरीन? जब मेरा पढ़ा ही नहीं कंटेंट, तो जो मॉक टेस्ट में पूछूंगा आपको हवा भी नहीं लगेगी, यार ये कहाँ से आया, ये एनालिसिस कहाँ से आया, ये ग्राफ कहाँ से आया, है ना? तो वो तो मुझे और बच्चों को भी पता होता है कि ये तो सर ने पढ़ाया था। तो इस पे जैसे मान लो हमने पूछा एक क्वेश्चन, सिंपल से पूछा, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंटली सब न्यू फ्रेम ऑफ क्वेश्चन आते हैं CSIR में, आप समझो जो आप। सर वन थिंग मतलब बहुत अच्छा लगा था सर आपका, कि आप एक्सपेरिमेंटल डिस्कस होता था के थ्रू आप समझाते हैं, तो वो चीज भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वाली चीजें भी, क्वेश्चन भी थे, तो क्वेश्चन को कैसे समझना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, एनालिसिस। सर CSIR जो है, मैंने जहाँ तक मैंने समझा CSIR को, वो एनालाइजिंग कितना अच्छा है बच्चे का, कंसेप्ट कितना अच्छा है, नॉलेज कितना, चीजों को कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, तो इस हिसाब से ये सर, तो ये सारी चीजें जो है इसी के थ्रू आप पढ़ाते हो।
आप चीजों को समझा के एनालाइजिंग कराते, मतलब उसमें भी इंसान क्वेश्चन पूछेगा, सर ऐसा हाँ। हुआ था तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जैसे हम लोग बिल्कुल। डिस्कस नहीं, आज करते भी मैं थे। डिस्कस करता हूँ, जैसे मैंने इनको कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड टॉपिक है, मैं चाहता तो इनको सीधे डेटा देके खत्म कर देता है कि भाई ये डीएनए में ये, बी डीएनए में हाँ ये। जी सर। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि डीएनए स्टेबल क्यों है। इन सब ने गलत कॉन्सेप्ट लेके रखा था, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया कि भाई ये कौन सा है राजलक्ष्मी, what is the reason of let me check the memory also. What is the reason of DNA stability? Tell me the word, keyword, what I have told you. I'm audible, Rajlakshmi? I think I'm not audible. So I told these people that behind the DNA stability there is a stacking interaction. तो मैंने पूछा stacking interaction क्या होता है, तो इन लोगों ने बताया कि हाइड्रोफोबिक। हमने कहा नहीं, एक और बॉन्डिंग होती है, ये लोग भूल गए थे। फिर मैंने बताया नहीं, वॉन्डर वाल भी होता है। फिर मैंने इनको पूछा कि मान लो NaCl डाल दें तो क्या होगा। फिर मैंने बताया चलो यूरिया डाल दें तो क्या होगा। फिर फॉर्मामाइड डाल दें तो क्या होगा। फिर कैसे स्टेबल होगा। इन सबको याद था कि डीएनए जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज होता है, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट कंडीशन भी दिया इनको। फिर मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट में दिया कि भाई इनको पता कैसे चला कि ये स्टैकिंग इंटरेक्शन ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो मैंने 2-3 और एक्सपेरिमेंट इनको बताया। तो आपको मतलब लर्निंग में भी मजा आता है, एंड देन यू केम टू नो द एवरी यूजफुल थिंग। और देखो मैंने पूरा नोट्स भी बनाया है, ये जैसे तुम लोगों को मैं बताता था वन नोट्स पे, ठीक है ना। तो आज मैंने सोचा था कि पूरा ये वन नोट से मैं इनको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम लीनियर वाइज में इनको बता के समराइज भी कर दूंगा। तो मैं उतना इंफॉर्मेशन गैदर किया। हाँ सर, जैसे ये आपने भी पूरा कंटेंट दिखाया और बगल हाँ, में आप लिख रहे मेन हैं। पॉइंट भी लिख देते हो, तो वो चीज भी बहुत ज्यादा ठीक है ना। बेनिफिट तो मैंने रहा। यहाँ पे लिखा है, देखो एकदम क्लियरली लिखा है कि ये बीटा लिंकेज है, ये प्राइम है, प्राइम क्यों कहते हैं, 2 प्राइम क्यों कहते हैं, 3 प्राइम क्यों कहते हैं, इंडो C2 है ना, इनॉल कीटॉल सब, राइबोज का क्या स्ट्रक्चर है, हाइड्रोक्सिल कहाँ पे है, डीऑक्सीराइबोज में कहाँ पे नहीं है, मतलब सारा बनाया भी है। मैं साथ में नोट्स भी बगल में दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर फॉस्फेट में क्या स्टेबिलिटी के कारण है, एटीपी में यही एनर्जी का सोर्स बन जाता है ना, और डीएनए में एनर्जी का सोर्स नहीं होता है, बैकबोन हो जाता है। तो फिर वो डिफरेंट, मतलब कहने का ये इतना एनालिसिस आपको किसी पहले तो कोचिंग में नहीं मिलेगा, कोचिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं मेरा। आई एम ए फुल टाइम प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी, आई एम द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, है ना, एंड ऑल्सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सो मुझे पता है कि किस तरह के क्वेश्चन के ट्विस्ट आ सकते हैं, कहाँ आपको परेशान कर सकते हैं, और आप कहाँ पे नहीं फोकस करते हो, मुझे वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करना है। जो आप जानते हो उसे हमें नहीं बताना है, जो आप नहीं जानते हो उस पर हमें ज़्यादा बताना है, ठीक है ना। जैसे हमने बात करी थी कि अभी एक वाटसन क्रिक पेयरिंग होती है, एक होती है हुगिस्टीन बेस पेयरिंग, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। और आजकल एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में सिंथेटिक डीएनए के बारे में, तो सिंथेटिक डीएनए में बेंडिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत एडवांस स्टडी करनी है, जो आप बिल्कुल नहीं जानते हो या जो आपको बिल्कुल रेयरली मिलेगा, है ना। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के ऊपर क्वेश्चन होती है प्लेक्टोनोमिक कॉयल, हाँ, डिफरेंट तरह के कॉयल होते हैं, कौन से कॉयल हैं, कैसे बन गए, इसमें रिप्रेसर कैसे फिट हो गया कि, है ना, डीएनए पॉलीमरेज कैसे फिट हो गया, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप का क्या फायदा हुआ, किस बॉन्ड से मेजर ग्रुप का बनना पॉसिबल हो पाया, है ना। तो वो सारी कैलकुलेशन, अगर 10 बेस पेयर है तो क्या बनेगा, फिर 20 बेस पेयर है तो क्या होगा, टिल्ट के ऊपर कैलकुलेशन। फिर अभी आऊँगा न्यूक्लियोसोमल मॉडल, है ना, उसमें सारा उसमें सुपर कॉइलिंग के ऊपर क्वेश्चन, है ना। फिर डिफरेंट कंडीशन, जैसे फार्मामाइड यूरिया का मैं बता रहा था, ठीक है। तो वो आपको अब यही आपको रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन करोगे तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड नोट्स आल्सो, और आपको रिवीजन में कभी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। कभी भी कोई चैलेंज है, कोई भी एग्जामिनेशन में आप दोगे टॉप करोगे, दिस इज माई गारंटी। नहीं गारंटी होगी उसी दिन पूरा पैसा वापस ले लेना, लेकिन आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। टीचर का पैसा मार के करोगे क्या है कि नहीं। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, सीधी सीधी बात है ना। ओके बेटा, एनी मोर क्वेश्चन? आई थिंक दिस टाइम दीपिका वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन। दीपिका, सौम्या के माइंड में भी 2-3 क्वेश्चन है, तो वो आप बेटा पूछ सकते हो, नो इशू। हेलो, यस सौम्या प्लीज।
Ajay, No, you sir, done. I'm done. Deepika is your friend, Soumya? Okay. No, sir. Yes, हाँ sir. दीपिका प्लीज. We हाँ are ये just सौम्य झूठ क्यों colleagues. बोल रहे हैं? अच्छा करी मैं तो जानती नहीं दीपिका को. चलो वो that मैंने sir, there is missing मतलब double name there. My name is there Pooja and here is Deepika. अच्छा 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 ओके ओके Now I पूजा know तुम्हारा you. नाम है तुमने दीपिका लिख रखा है. ओके ना वो ओके कोई बात नहीं. तो चलो क्वेश्चन पूछो आप. बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछो आफरीन से. आफरीन इज रेडी टू आंसर. No, sir, we are starting at that point, so there is no. अच्छा आई थिंक right now. बोथ ऑफ यू आर दिस इज द फर्स्ट टाइम ना. फर्स्ट अटेम्प्ट. दैट्स वाई. तो sir, आप yes, आफरीन ने तो yes, बहुत sir, अच्छा गाइड किया. देखो फर्स्ट टाइम में उसने भी क्वालिफाई किया तो पहले तो समझ लो कि कोई डाउट नहीं है. फुल कॉन्फिडेंस से ज्वाइन करो क्योंकि रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करोगे और थॉट ओवर चेंज करोगे आइडिया चेंज करोगे देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. फोकसिंग इज मस्ट है ना. बहुत अगर एक बार फोकस कर लिया कि नहीं भरसक के साथ चलना है और हमारा क्वालिफाई होगा तो फिर आपका खाली एक ही काम रह गया कि बार बार आपको रिवीजन करना है. ठीक है ना. बार बार आपको रिवाइज ही करना है. So that is enough to cover a syllabus within 4 or 2. नहीं नहीं आई एम गोइंग टू कवर. इट्स योर पार्ट कि व्हाट यू वांट टू लीव व्हाट यू वांट टू कवर. No, और after class we have revised it only on in 2 or 3 hours हाँ at least. यस यस. देखो सिलेबस में दिखा देता हूँ तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. इफ यू विल सी द सिलेबस एंड एनालाइज सिलेबस क्लियरली तो दिस लुक्स वेरी वेरी टफ राइट. तो व्हाट्स ही सजेस्टिंग आफरीन इज सजेस्टिंग दैट कि पहले तो आप एक काम करो कि अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लो व्हाट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल. समझ गए. दिस इज द 13 यूनिट्स. ओके. मेरे लिए क्या है मैं तो देखो अभी 3 दिन पढ़ाऊंगा आपको 1 to 5 यूनिट्स में से और उधर रेस्ट जो 2 डेज बचता है मैंने इधर 6 यूनिट से स्टार्ट कर देना है. ठीक है ना. सिस्टम फिजियोलॉजी से मैंने स्टार्ट कर दूंगा हाँ, है ना. yes, sir. तो आपका ये सिस्टम फिजियोलॉजी हाँ Yes, पूछो. Soumya, yeah, you only you only select those topic which you easily understand. Don't rush to another topic, another chapter. If you are not understand that that topic, don't touch. अभी देखो इनहेरिटेंस बायोलॉजी पे मैं जबरदस्त आपको नोट दूंगा. हर चीज पढ़ाऊंगा. लेकिन जैसे मेरा एक दिन का लेक्चर क्या होता है जैसे मेंडेलियन कॉन्सेप्ट एक दिन उसी दिन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन उसी दिन एक्सटेंशन भी हो गया उसी दिन जीन मैपिंग में आ जाऊंगा. सेकेंड टॉपिक में हमारा ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स तक खत्म है. मतलब 3 लेक्चर में ये पूरा यूनिट मैंने खत्म कर देना है या मोस्टली 2 वीक्स में मतलब 6 डेज में राइट. यू कैन सी देयर आर 10 टॉपिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. आप समझ रहे हो. अभी आपकी स्पीड के ऊपर क्योंकि नोट्स भी मैं बना के दे रहा हूं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए. देखो मैं नोट दिखाता हूं आपको. अरे यार हाँ ये देखो. हाँ हाँ बेटा. Sir, this is enough to cover with हाँ notes we yes have yes. prepared No other no no than no notes. nothing nothing no extra. It is यस enough यस to जस्ट know. ओपन. कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हो जस्ट ये गूगल क्लास से क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लो. दैट इज कॉल्ड द गूगल क्लासरूम ऐप. और जस्ट आप ये जस्ट आप ये करो. जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो इजीली ओपन हो जाएगा. डाउनलोडेबल है. आप यहाँ से पूरा फटाफट बस नेक्स्ट 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 करते जाओ. आपका 5-7 मिनट में पूरा 1 घंटे का लेक्चर पूरा रिवाइज हो गया. देखो ठीक है. ये देख रहे हो आप. तो ये आपका रिवाइज होता चला गया. ठीक. हेलो
Hello. Yes, yes. So, am I audible to all of you? Hello. हाँ. Hello. Yes, yes. हाँ बोलो बोलो बेटा. सौम्या, you want to ask? हाँ सर. पूजा आप No sir. देखो ये नोट्स ना पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, राइट? Yes sir. हाँ Yes sir. I have तो done. ये देखो ये सारा नोट्स ना आप नेक्स्ट करते जाओ एंड दिस इज गोइंग टू ओपन एंड दिस इज. अब यहाँ पे देखो हैंड रिटन नोट्स मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी बच्चों को दे रहा हूँ एक एक, मतलब मेरा जितना एफर्ट है 90% मैं आपको दे रहा हूँ. वो आफरीन यही तो बात कह रही थी कि आप चिंता मत करो, आपको सारा नोट्स मिलेगा. ये देखो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है ना, ई नोट्स. ठीक है, अब जब आपने क्लास अटेंड किया तो आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या डिस्कस किया था. अब अगर क्लास नहीं अटेंड किया है तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने कौन सी बात कहाँ से करी है. ये वो चैप्टर है जो पैथोजेनिसिटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन इसमें आते हैं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं, ठीक है ना. अब वो मैंने क्या किया है कि मैंने सारी दुनिया का किताबें पढ़ के आपके लिए नोट्स तैयार कर दिया 5-6 पेज में, 10 पेज में, ठीक है ना. तो ये आपको HIV से लेके, डेंगू से लेके, कोरोना से लेके, उनकी क्या हेपेटाइटिस से लेके सारा कुछ, उनकी वैक्सीन क्या है ना, किस तरह से अटैक करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन रेट क्या है, कहाँ पे उनको इनएक्टिवेट किया जा सकता है, सारी स्ट्रेटजी, राइट. तो दिस इज द कंप्लीट नोट, यू कैन सी हियर, है ना. यूनिट 4, 11 है ना, यूनिट 8, 6, 5, 4, 3 है ना. एंड देन IPR का मैंने वेबिनार भी कराया था एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से. असाइनमेंट भी देते रहते हैं. यूनिट 2 का देखो पूरा कंप्लीट है ना, देख रहे हो एडवांस में. तो इसमें मैं भी आपको ऐड कर दूंगा. ये PS बफर पे हिंदी में डिस्कशन हुआ, तो जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो उसको हिंदी में भी दे देते हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट का मटेरियल दे रहे हैं, मैथ का पूरा आपको देखो एक जगह मिलेगा ढेर सारा मटेरियल. तो जो टेस्ट अनाउंस होता है तो आप पढ़ते रहो, ठीक है. नंबर सीरीज एप्टीट्यूड टेस्ट का नोट दिया हुआ है ना. लाइब्रेरी मैंने बना रखी है, लेटेस्ट बुक्स, लेवाइन का बुक है ना, यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक, जीन क्लोनिंग बुक. कितना पढ़ना है, इतना रिसोर्स दे दूंगा कि आपको कहीं जाना ही नहीं है, मतलब कोई भी रिसोर्स आपको बाहर से लेना ही नहीं है, ठीक है. आप यहीं से आपको पढ़ना है. यूनिट 1 में देखो विटामिन, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म है ना, लाइफ रिकॉर्डिंग, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, पीएच बफर, अमाइनो एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन, कितना पढ़ना है आपको. लो विद नोट्स, विद वीडियो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? तो पहला आपको करना है, पहले तो डिसाइड कर लो कि हमें तैयारी करनी है कि नहीं, क्वालिफाई करना है कि नहीं. इफ यू आर डेस्टिन्ड टू क्वालिफाई दिस टाइम, देन एवरी पाथ इज वेरी क्लियर टू यू कि आपको रेगुलर होना है ना. फिर आपको जोश आ जाएगा, आप हर टाइम की यूज करोगे, इवन मॉर्निंग में, ट्रैवलिंग में, है ना, हर टाइम में, क्योंकि आपके पास मटेरियल सिर्फ चाहिए, मटेरियल पर लग जाना है. इवन आपको टाइम में तो यूनिट 2nd में भी जंप कर सकते हो, 3rd में भी जंप कर सकते हो, ठीक है ना. बट मॉक टेस्ट को ध्यान में रखना कि हर वीकेंड में मॉक टेस्ट होना है, एंड वो आपके लिए मोटिवेशनल होना चाहिए. मतलब यू शुड नॉट गेट द लो मार्क्स. लो मार्क्स भी पा रहे हो तो पूरा जम के ऑप्शन के ऊपर फोकस करो कि व्हाट इज, व्हाई दिस इज रॉन्ग, मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ पे गलत हुआ. तो कभी कभी होता है सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन में विद द डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है ना आफरीन. तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत हो गया कि कुछ पढ़ाई करनी है, काफी डिस्कशन हो गया. पहले इसको थॉट ऑफ प्रोसेस में ले आओ. मेरा तो देखो हमेशा तैयार रहता है नोट्स, है ना. मेरी स्पीड का आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने रेडी हो, कितने मोटिवेटेड हो. मेरा तो बिल्कुल है कि मैंने क्या पढ़ाना है, बिल्कुल आपको क्या कंटेंट देना है, कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे आप गलतियां करोगे, कहाँ पे क्वेश्चन आएगा. तो आई एम ऑलरेडी रेडी विद माई थिंग्स. अब देखो ये आर्टिकल भी मैंने आपके लिए निकाला है, जहाँ पे बहुत ही लेटेस्ट आर्टिकल है, डैनिश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से. ये डेविड ओसरे ने अभी 20 में लिखा है आर्टिकल, ये अबाउट द ADNA, BDNA, ZDNA एंड ऑल कंपेयर विद द BDNA, ठीक है ना. तो क्यों है बेस स्टैकिंग में कहाँ डिफरेंस है, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन है. तो मैं ये सब आर्टिकल देखता हूँ, तो यही वो साइंटिस्ट भी देखते हैं, है ना. फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन में कैसे डिफरेंस आता है, फिर वाटसन क्रिक पेयरिंग में क्या डिफरेंस आता है, फिर उसके पूरे एक एक चीज. मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कंपटीशन, कौन सी कंपटीशन तैयारी. इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, देन अगर मान लो टेस्ट भी हमने पूछा
कि भाई हमने ये न्यूक्लियोटाइड डाल दिया तो कितने एंगल का टेस्ट होगा, तो मैंने आपको बता दिया है। स्टैकिंग एनर्जी, प्रॉपेलर ट्विस्ट, एवरीथिंग यू आर वेरी, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन प्रॉपेलर ट्विस्ट एंड ट्विस्ट, है ना, माइनर ग्रुप में जैसे आते हैं। तो बी श्योर कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन एट राइट प्लेस। तो आप आ रहे हो अच्छी जगह पे, मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ बच्चे टॉप करते हैं, हम देखो वैसे बच्चों को लेते ही नहीं जो डाउन टाइप के होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। वो एक दो आते हैं तो चलो कोई बात नहीं, बट जब तक मैं देखता हूँ एक दो मॉक टेस्ट 1 मंथ 2 मंथ का, तो फिर मुझे पता लग जाता है कि कौन, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अभी हमारे लास्ट ईयर का जो आफरीन का रिजल्ट है मैं दिखाता हूँ तुम्हें, क्यों क्वालिफाई कर पाई, इट्स ऑलरेडी प्रेडिक्टर। तो जब मैंने इसको फेसबुक में डाला तो बहुत बच्चों ने मजाक उड़ाया मेरा कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे प्रेडिक्शन होता है। मेरे लेवल जो क्वेश्चन अगर राइट मैचिंग है CSIR के ट्यून में, तो बच्चों का जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल वैसे ही आएगा, सेम पैटर्न है। मैं दिखाता हूँ, हमेशा आफरीन का 80, 86, 90 है ना, इस तरीके से आता था। कभी ऐसा नहीं कि हमेशा 96 ही आता था, 98 ही आता था, कभी 75 भी आया तो मैंने डांटा, और भी कम आया तो और भी डांट लगाई। मतलब जितना ज्यादा नीचे आओगे उतनी ज्यादा मेरी डांट भी पड़ेगी, है ना। तो हमारा सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड कर लो, मेरिट लाइफ साइंसेज का ये ऐप भी चलेगा, iOS पे भी चलता है, सब जगह चलता है ये। क्लास प्लस, web.class+app.com फॉर योर PC एंड सिंपल, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, नो इश्यू। अब आपको दिखाता हूँ पूरा। अभी देखो, इन लोगों को लास्ट बैच का ये था 5th बैच अचीवर्स, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी द टेस्ट रिजल्ट्स। सारे स्टूडेंट का मेरे पास डेटा है, पूरा ग्राफ है। अब जैसे मान लो आफरीन का मैं निकालता हूँ, क्योंकि ये तो टॉपिक वाइज हो गया। अब आफरीन का कहाँ गया, ये है ना प्रीति नाम था ना तुम्हारा। हाँ, ये निकनेम इसका, इसने निकनेम से रजिस्टर किया था। तो नाउ यू कैन सी, ये प्रीति के नाम से था, ठीक है। इसका पूरा डिटेल है यहाँ पे, आप पूरा डाल सकते हो अपना पर्सनल डिटेल, फोटो, वो अच्छा ही रहता है आपके लिए। एजुकेशनल डिटेल मैं पूछता ही हूँ, बैच में कब ज्वाइन किया आप देख सकते हो। 5th बैच अचीवर्स में है। इसका क्लास अटेंडेड में कई बार मैंने अटेंडेंस जैसे नहीं मार्क करी है तो वो इसलिए लेस है, इसका तो काफ़ी अच्छा अटेंडेंस था। तो ये है ना, मुझे मार्क करना था, जैसे मैंने आज भी नहीं मार्क किया, क्योंकि बच्चे कभी मूड होता है पढ़ने का, तो ये अब परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, ये देख रहे स्कोर, ये मैंने टारगेट किया हुआ है पूरा 100%। तो पूरा ओवरऑल अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो पूरा टेस्ट ने रेगुलर दिया। एफर्ट देखो आप, जैसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, 81 आया है, 172 में 172 आया है। इधर देखो, इसने इतना अच्छा एफर्ट किया, 100% एंट्री स्कोर है इधर, ये देख रहे हो तुम लोग। देखो, नो इनकरेक्ट आंसर, नो पार्सल इनकरेक्ट ना, 100% करेक्ट 53। तो इसके बेस पे इसका बैच रैंक था 1, इंस्टीट्यूट रैंक 4, परसेंटाइल 50, एंड सी टुक 172 मिनट्स ऑलमोस्ट, ठीक है ना, 172 मिनट्स या सेकंड जो भी होगा। तो ग्रेड ए, हाईएस्ट मार्क्स 173, एवरेज मार्क्स जो और बच्चों गया वो कम गया 114 के, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा है। डिफिकल्टी वाइज अभी टैग मैंने देना नहीं शुरू किया, अब क्वेश्चन हमारे डिफिकल्टी वाइज भी आएंगे कि किस क्वेश्चन को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है ना, किस में आप ज़्यादा कर सकते हो। और सोल्यूशन देखोगे तो फुल्ली सॉल्व होता है, फुल्ली एक्सप्लेन होता है। फिर भी आपको कई बार समझ में नहीं आता तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एवरी मंडे, ठीक है ना। ये देखो पूरा एक्सप्लेन्ड है, ठीक है ना। एज सुन एज यू आर फिनिशिंग द मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग द फुल्ली एक्सप्लेन। कुछ कह रही थी तुम आफरीन? अच्छा, नो सर। तो ये काफ़ी हम देते हैं अपना। सेक्शन ए का भी टेस्ट चलता है, सेक्शन सी का भी चलता है, बी का भी चलता है, और करीब 60-70 टेस्ट तो हम चले ही जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट देखो लिया हमने, इसमें बच्चों का पता ही लग जाता है मुझे कि क्या हालत है, क्या आएगा रिजल्ट। ये प्रेडिक्टर है हमारे लिए कि भाई रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रेंड क्या है ना। जो ट्रेंड है उसी से पता लग जाता है। आपका 100% एक्यूरेसी है, देखो, है ना।
तो ये ट्रेंड हम चाहते हैं कि एक्यूरेसी। अब यहाँ पे देखो 64%, इसी आफरीन का ये टेस्ट है, 64% एक्यूरेसी, एनटीए स्कोर यही है आपका, राइट। तो इस पे मैंने काफी फोकस किया, भाई इनकरेक्ट आंसर ये कम से कम करे, ठीक है। तो इस पर काफी हमने फोकस किया। फिर ये देखो इसका एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये कह रही 2 क्वेश्चन करके आई, तो ये इसे रियल में बहुत डरती थी, देखो तो इसने यहाँ बिल्कुल छोड़ ही दिया है, कुछ क्वेश्चन नहीं किया एप्टीट्यूड में। तो ऐसा है कि आपका ट्रेन जो करने का तरीका है ना, वही बताता है कि आपका सक्सेस कितने % पॉसिबल है। हर टॉपिक में देखो, ग्लाइकोलिसिस लिया है, एंजाइम पे लिया, इम्यूनोलॉजी पे लिया, एनिमल डेवलपमेंट लिया है, सेल सिग्नलिंग लिया, ठीक है ना, होस्ट पैरासाइट पे लिया, सारा लाइन से लिया हुआ है, साइटोस्केलेटन, गैप जंक्शन। अभी तो बहुत सारे दिख नहीं रहे यहाँ पे, बहुत ज्यादा टेस्ट लेते हैं, टेस्ट ही तो आधार है हमारा, ठीक है बच्चों। तो आपने ऐप होपफुली डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं डाउनलोड किया तो मैं अभी लिंक चैट बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है। डरा मत करो किसी चीज, कोई टीचर सजेस्ट करता है उसको पूरा किया करो। तुमने सुना होगा कि एक रिक्शे वाला बेचारा पढ़ाता है अपने बच्चे को, तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो मेहनत करके फीस नहीं भरता है, फीस भरेगा तभी रिजल्ट आएगा, है ना। अब ये लिंक मैं देता हूँ। अब ये सोचोगे आपकी फीस नहीं भरनी है, पढ़ना भी नहीं है, शॉर्टकट से करेंगे फिर हो भी जाएगा, फिर 35,000 पर मंथ भी आएगा, तो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। यह ऐप का लिंक मैंने दे दिया, मेरिट लाइफ साइंसेज, ये लोगो पहचान लो, है ना। आपको रिव्यू पढ़ना है तो आप यहाँ से रिव्यू पढ़ सकते हो। ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। हिना के नाम से इसने दिया है आफरीन ने, राइट आफरीन, हाँ इसने सारा सब बच्चों ने दिया फेयरली। मेरा कोई ये नहीं है कि तुम ऐसा अच्छा ही लिखो मेरे लिए, एवरीवन इज गिविंग योर ओन, है ना। सुदीप्ता देखो लास्ट ईयर क्वालिफाई किया था मेरे से CSIR नेट, है ना। यजुर्वेद भी CCMB में था, अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब भटकता है, यहाँ वहाँ सबका नोट्स कलेक्शन, वो कर लें वो पढ़ लें, वो नहीं हो पाएगा भाई। एक जगह ट्रस्ट करो एंड देन, राइट। हाँ बेटा बोलो। हेलो, हाँ सर, लोकेश सर ने भी आई थिंक तो उनसे उनका रिजल्ट ले लो और उनसे बात कराओ एक दिन, ठीक है ना। तो उनको मैं पता नहीं, लेकिन लोकेश कैसे पता सर ने लगा भी तुम्हें? क्वालिफाई किया है क्योंकि हाँ क्योंकि इनका बहुत अच्छा 90%, पढ़ने इनका में परसेंटाइल दिखाओ 90% है। हाँ ये सर बहुत, हाँ बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने में। और देखो स्टूडेंट को तो थोड़ा सा वो होना चाहिए ना कि भाई, है ना। लोकेश का मैं दिखाता हूँ, लोकेश ने काफी अच्छा एफर्ट किया, बहुत अच्छा करता था, तो बहुत मतलब रेगुलर था, मतलब जितना मैं कहता था उसको फॉलो करना, ये सबसे बड़ी चीज। ये लोकेश है, ये देखो, ठीक है ना। ये इसका रिजल्ट मैं दिखा सकता हूँ, ये नहीं कि मैं फर्जी, इसका देख रहे हो एनटीए स्कोर तुम लोग, मुझे लग रहा था ये टॉपर होना चाहिए, 95 98 के बीच में हमेशा बढ़िया स्कोर आता था। सारा टेस्ट इसने दिया, देख रहे हो तुम लोग। तो खाली टेस्ट नहीं, इसके बैकग्राउंड में ये है कि मैं पूरा डिटेल देता हूँ आपको, रियल देखो, इंस्टीट्यूट फीस, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, है ना, ये सब इसका दिख रहा है। रेडियो लेवल 13 यूनिट, है ना, ये सब दिख रहा है ना आपको। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जीन थेरेपी, जीनोमिक्स, है ना, mRNA, siRNA सब दिया, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटी टेस्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंजाइम गणित, सब कुछ टेस्ट लिया, कुछ नहीं छोड़ा है। तो ये आप डाउट ना रखो कि मेरी तरफ से कोई ड्यूटी में दिक्कत नहीं होगी। ड्यूटी आपको क्या करनी है वो आप अपनी देखो क्यों फ्रेंड, वो जीन मैपिंग पे टेस्ट लिया है ना। मैं कहो आज भी अलॉट कर दूं सारा का सारा। अब स्टोर में जाओ, ऐसे बहुत सारे पड़े हैं मॉक टेस्ट का, एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट, आप जब चाहे मॉक टेस्ट दो, लेकिन उससे कितना लाभ होगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ मेरे ट्यून में चलोगे तो वो गारंटी है कि आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं आपके ऊपर वॉच रखूंगा, आपकी कमियों को देखूंगा, है ना। आई विल सी ऑल ओवर योर लैकिंग्स ना। तो आप डायरेक्टली मुझे फी पेमेंट ना करो, यहाँ पे चले जाओ करो, है ना। CSR स्ट्राइकर बैच है, यहाँ पे पेमेंट करो, है ना। और भी है प्लान्स, आप यहाँ पे देख के मुझे मत पेमेंट करो। मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज मतलब कोई भी फ्रॉड नहीं है। अगर आप समझते हो किसी भी तरह का फ्रॉड होगा, आपका चीटिंग होगी, नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से अपना लाइफ सेलेक्ट करो। हाँ अगर लाइव क्लासेस में मेरे गाइडेंस में करना है देन मैं जो कह रहा हूँ फिर वो करोगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है ना। अब ये देखो CSR यूनिट सारे मैंने 60-70 टेस्ट डाल दिए हैं इसमें, ये 3899 का है, पूरा करो अपना, डेली प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू सी ऑल दैट थिंग्स।
अब ये जैसे इसमें लाइव क्लासेस नहीं है, सेल्फ पेस स्टडी है 11,751 का। एक गर्ल्स के लिए स्पेशल भी मैंने लॉन्च किया था, वो भी आप लोग देख लो। अगर आपको लगता है कि हमें खुद ही पढ़ना है तो मेरे ख्याल से वो भी आपको मिल जाएगा, गर्ल्स स्पेशल। ये देखो लाइव क्लास के साथ 14,000 का है, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें 10,000 आपको एक्सक्लूसिव मिलेगा, और मतलब जाओगे तो ये 14,000 का दिख रहा है, 11,000 का पड़ेगा टोटल। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन यू कैन व्हाट्सएप में, लिंक मैंने दे दिया है, तुरंत डाउनलोड कर लो, ठीक है। एंड अपना फीस वगैरह क्लियर करके एंड देन बी रेगुलर। आई विल ऐड यू इन द गूगल क्लास ऑल्सो। रिकॉर्डिंग आपको सारी मिलेगी, राइट। अभी तक की सारी पीपीटीज मिल जाएंगी, तो आप उसको देखते रहो। मॉक टेस्ट भी जब चाहोगे तब मैं लॉट कर लूंगा, ठीक है, राइट। तो आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं। फर्स्ट टाइम सेकेंड है आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, आपको टॉपर वाली चीजें मिलेंगी, आपको टॉप कराएंगे, ये विश्वास रहे। देखो कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट की, है ना। अगर आपको विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ट्रस्ट है कि मुझे सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, राइट, जस्ट मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, डोंट बॉदर अबाउट अदर्स ड्यूटी। मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब इतना तो है नहीं कि जैसे आप कह रही थी भाग भाग के पढ़ोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरा काम यह है, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा कि 30 मिनट्स करूंगा। मैं आपको ये कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। जो भी कराऊंगा इसका मॉक टेस्ट में आपको कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया क्लियर कर दूंगा कि आप जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो क्योंकि 50 में से आपको 35 इधर करने हैं, 75 में से 25 क्वेश्चन इधर करने हैं, ठीक है ना। तो आप सब कुछ पढ़ लोगे तो आप सब क्वेश्चन को पढ़ने लगोगे कि कौन सही जी, सारा टाइम निकल जाएगा। कम पढ़ोगे 7-8, जैसे इधर पढ़ लेंगे 5 यूनिट इधर से, 5 यूनिट उधर से, एटलीस्ट 1-2 यूनिट तो उतना टाइम नहीं रहता है, लास्ट मोमेंट में जल्दी 1-2 दिन में खत्म होता है, तो कवर तो हम सारा कर देंगे, राइट। बट लेकिन आपको इन डेप्थ स्टडी वाली आपको 8 से 10 यूनिट ही होगी, ठीक है ना। तो लेकिन वो भी आपके क्वालिफाई के ऊपर जाएगा मार्क्स। तो आप श्योर रखो, सीरियसली पढ़ो, हर चीज़ों को ध्यान से सुनो, प्लान्ड वे में काम करो, नोट्स लो, रिवीजन करो, जो स्ट्रेटजी बताई गई उस पर फुल्ली काम करो। आप कहीं कितने भी बिजी हो, हर टाइम आप नहीं पढ़ सकते, दिस इज ट्रू, ठीक है ना। तो मैं ओवर द कंटेंट काफ़ी रिसर्च करता हूँ, राइट। तो उसके लिए कोई आप मेरी पार्ट है, आपको चिंता नहीं।